He's talking Yes. about my younger son. Like I said about my elder son. हाँ, I'm समझ telling about गए. Yeah. Obviously, IIT खड़गपुर से है, तो he cannot pursue chartered accountancy. yes. Yes. Who else would like to share what are their desires, what are their dreams? अभी तक सबका बच्चों के लिए ही था. What about oneself? Yourself. And oneself के लिए I want a farmhouse. Oh, Oh, lovely. Very good. So Very बहुत good. जल्दी होए, so that we get to come. Very good. I know. With lots of trees, lots of flowers, lots of fruits, vegetables, Lovely. everything. A nice farmhouse. For beautiful. myself, Wow. a nice farmhouse. ये तो visualize करने में भी बहुत मजा आएगा ना? Yeah, I'm visualizing a nice bungalow over there with a People come swimming for pool. organic lunch. Hema ji is from Calcutta? No, From Kolkata? I'm from Cuttack. Cuttack. Oh, then तो Okay. कटक जाना पड़ेगा. Yes. Yes, Jyoti, आप बताओगे नहीं? Unmute, You unmute. unmute Sorry. yours. Yes. Wait, I want my daughter to secure really good marks in her class 10th exams. That's the first and utmost one. She's in 10th right now. No, she's in 9 now. So it's a long. Oh God. But I've started. But I have written in my dreams in my magic class also. That is my first and utmost. Okay. So these are So, long goal dreams. It's a long dream. I know. I'll wait eagerly for it. I'm trying to give everything possible in that. Okay. So we can make a list, जो short notice, मतलब short term goals and long term goals. We can make few short term We can goals. you have to make a separate dream list, yeah, for a short term time. No. One Same list list. only. लेकिन हाँ कुछ short term भी बना सकते हैं ना, long term तो रहे. हाँ, short term भी लिखा हुआ है इसमें. Yes. I wanted to ask you, Payal ji, this is not regarding this chapter, but just wanted to ask you वो that abundance book ली है that वो Rajan Shah sir की. I'm little not very clear how to go about it. उसको कैसे लिखना कैसे है? Because they are बीच में there are a lot of chapters हैं. Assignments and tasks. Yeah. हाँ. So वो You can use the book as the way you want to. उसमें आप चाहो तो अपना gratitude लिख सकते हो, आपके assignments वगैरह के जो हैं वो लिख सकते हो, and in between start doing all the tasks with whatever is given in the book. You can do those also. It just makes you a little, more grateful. मतलब practice के लिए easy हो जाता है. अच्छा. Okay. Yes. And who else would like to share their dream? And Ruchika ji, अभी share Nisha. कर सकते हैं. Any experience? Anyone used any superlatives? क्या use किया purposely? Aware हो गए. अब तो मतलब पता चल गया ना कि अरे ये तो कुछ गलत use कर रहे हैं, तो वो भी याद आ जाता है. हाँ. Today morning only, like I was a little negative. I had used some negative words for my daughter. Ki, why aren't you eating your almonds and all? But I didn't. No. I should not use any negative words. I was positive. और मैंने realize कितना unconsciously हम लोग कितने negative words use करते हैं. तो ये बहुत eye opener था मेरे लिए कि नहीं करना है, किसी के लिए भी नहीं करना है. The first step is awareness. Aware हो जाए, cautious हो जाए कि अरे हाँ अगर ये पता चल जाए where am I committing a mistake, तो obviously हम लोग तो cross over कर गए हैं. उसके बाद तो ठीक है, फिर practice करना है. But the thing is हम लोग realize नहीं कर पाते. Unconsciously say so many बहुत things. unconsciously इतना words use करते कि नहीं करना चाहिए. हाँ. बहुत. Okay तो सबके, I think most of us used to say okay तो ऐसे ही हर चीज में okay ना, okay हाँ okay. But अब उसको वो तो अभी भी आता है. For us, above the line feeling only. अब पता लगा कि it is below the line feeling. हाँ. So I am also trying. अभी भी पहले I used to say to a lot of students and उनके mother से जब बात होती थी okay. Now I have stopped. I said all right. All right. I make it a point not say okay. I said all right. ठीक है. Slow and steady. We all will change. Videos please on करिए. Whoever has joined. It's okay. सबका I think afternoon nap time है. चाय time हो गया था.
Now put on the videos. We can have some interaction when the book reading will start. Then you can again put off. पायल जी एक चीज पूछनी थी मुझे, Yes. लाइक कई बार क्या होता है ना, हम पॉजिटिव है, फिर भी ना बच्चे वो ऐसा काम करते कि ना लगता है गुस्सा आ जाता है कि क्यों नहीं मेरा बात सुनते हैं। वो उस मोमेंट में क्या करना चाहिए? फिर लगता है नहीं मुझे फिर पॉजिटिव होना है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग था ये चीज मेरे लिए। हाँ, this is something very natural. After years practice also, अभी भी मैं भी लूज कर जाती हूँ कि हम लोग ने बच्चे लोग ने ABC कितने टाइम स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स हाँ, करते करते सीखा है। A B पूरा 1 year लगा। हम लोग तो अभी तक तो भी स्टार्ट किए हम लोग। तो हाउ इज इट हाँ, पॉसिबल कि एक बार में सब कुछ सीख जाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप हाँ, अवेयर हो गए हो कि यू हाँ, हैव गॉन अवेयर। बिलो द लाइन, अब मेरे को आप उस पर वर्क कर सकते हो कि अब मुझे ऐसे सिचुएशन में हाउ टू डील विद इट। तो या तो आप उस सिचुएशन से एक बार बाहर चले जाओ, क्या वो सामने रहने से क्या बार बार तो इधर यू मूव अवे, डू सम वर्क, देन यू कम बैक टू चेंज ऑफ माइंड हो जाता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। दिस वी हैव टू वर्क ऑन इट, ऐसे किसी और का बोलने से तो एक्चुअली लगेगा मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताऊंगी, कोई अपने सब एक्सपीरियंस से बताएंगे। बट थिंग इज, अगर हम लोग को पता चल गया है वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक, वेयर वी आर गोइंग बिलो द लाइन, नाउ वी कैन फाइंड आवर ओन वेज, कि मेरे को क्या चीज करने से आई कैन शिफ्ट द मूड, हाउ कैन आई टॉक इट ओवर टू माय चाइल्ड इन अ डिफरेंट वे। ये हम लोग का वर्क ऑन करना है धीरे धीरे, एंड इसके हम लोग को प्रैक्टिस करना है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस। वो ABCD एक बार में नहीं सीखते थे, एक साल तो तक यही हुआ। लिखते गए। हाँ, ये आपने ठीक बोला। हाँ, प्रैक्टिस करते करते। आज आप एक बार अवॉइड हुए, आज एक सिचुएशन में आप अवॉइड किए, फिर 2 दिन आएगा, फिर आप उसमें किए, तो इट विल बिकम हैबिट एंड प्रैक्टिस। हाँ, जैसे आज सुबह से मैंने 3 सिचुएशन में अवेयर होकर मैंने अपना तुरंत अपने बोली के टोन को चेंज किया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना है। तुरंत मैं अवेयर हो गई, आई डोंट नीड टू से एनी नेगेटिव वर्ड्स। अगर ये अवेयरनेस आ गया, देन बिंगो। थैंक यू। हेलो रेनू दीदी, पायल जी, शी इज माय सिस्टर इन लॉ। Okay, hello. I can't see her. Mute. Acha, now I can see. Yeah. And welcome to the Power Book reading session, Renu ji. Thank you. It was really a pleasure joining you all. I should give thanks to my Bela. She is the one who encouraged me, and I'm really enjoying my classes. I'm just a beginner. It will take me a while, but I'm sure slowly I will, pick it up. Absolutely. I'm sure you'll pick it up really fast, and it will do a lot of good to all of us also. Thanks. Good learning. Definitely. आप कहाँ से हो रेणु जी? दिल्ली से. Okay, Delhi. Okay, that's nice. You see, magic हम लोग का power हम लोग का कहाँ तक spread हो रहा है. Cuttack, I heard. Delhi. I haven't joined your magic, so I'm a little, I'm not very communicative when it comes to magic because I didn't do those classes. Next time when you start, I definitely would like to take part in it, to join it. वरना हम लोग कोई भी जब start करेंगे, हम लोग we always share it the group. तो आप बिल्कुल करिएगा. Thank you so much. मैं इसके लिए wait कर रही हूँ. I was telling Bela the same thing. Yes, thank you. Yes. Anyone else who would like to share something? Otherwise, it's 4-5. आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. It's all about the power and creation, as Nikki said. It's all about creation of our dreams, और हम लोग उसको कैसे अपने लाइफ में ला सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. तो और कल के टेक अवेज, आई एम श्योर एवरीवन एंजॉयड द सेशन, एंड बहुत सारे टेक अवेज से समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आया. एंड बट द थिंग इज, द ओनली थिंग इज, समझ में बहुत कुछ आता है, ऐसा बहुत कुछ सेशन हम लोग अटेंड करते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अप्लाई इन आवर लाइफ. इफ वी डोंट अप्लाई इट, it is of no point reading it, no point listening to it, no point talking about it to all the other people if you don't apply it in our life. अगर हम लोग apply करेंगे, we can see this. Hello, yes, Shweta ji. I have a sharing. It happened just a few hours before, not even hours, just few minutes, 30 minutes before. Anji. Actually, I went for a vaccination to nearby hospital. तो when I was returning, we took a rickshaw. तो रिक्शे वाले को I was supposed to give 50 rupees. जहाँ उसको मुझे छोड़ना था, मैं पहले ही उतर गई, तो he returned me 60 when I gave him a 100 rupee note. तो उसने कहा कि आप 40 ही लूंगा क्योंकि आपको तो पहले उतर गए.
तो मैंने बोला नहीं भैया 50 में बात हुई थी तो आप 50 रखिए, और मैंने 50 उनको दिया, 10 रुपीज जो उन्होंने दिया था उनको वापस कर दिया। हम लोग पहुंचे, तभी मेरी डॉटर का आईफोन मिसिंग था। देखी कि मम्मा फोन कहाँ गया मेरा। Within 5 minutes she got her phone back. Oh, wow. Wow. Very nice. Really nice, you know, Very and nice. the face is beaming. उसी से लग रहा है she's so happy about all this Yeah. situation. So thank you universe for this. Absolutely, एकदम वापस से थैंक यू बोलना ही हम लोग भूल जाते हैं. वेरी नाइस. ग्रैटिट्यूड वापस जरूर हम लोग को रिटर्न करना है, देना है, so that all the more magic happen in our life. Yes. She is I Shweta. also- She is my neighbor. She is my best friend. Oh, that's nice. Thank you Yeah. so much. So magic is like next door only. Huh? Yes. Happening हाँ, next कोई door. और शेयर करने वाला कर रहा था ना? Somebody Yeah, I said. was telling कि मतलब you told me to give little amount of money everywhere, मतलब where it is possible. तो पहले कभी सिग्नल्स आते थे, कुछ भी आते थे, तो I was की least bothered कि ये तो रोज ही आके खड़े हो जाते हैं. अब पहले से I always keep the change, और कोई भी आता है तो I मतलब बहुत quickly I just lift up the window and give the money. पहले होता था उनको देख के थोड़ा सा ऐसा, अब तो वो आके मेरे को परेशान करेगा, तो I always prepared myself to give them. Great. Very Yeah, nice. that's a nice feeling. Very nice. See, that's the change of thought. तो हम लोग सब अपना change कर सकते हैं if you want. And all these sharing, जब तक कि whenever we are having these classes, आज जैसे ग्रुप में इतने सारे शेयरिंग पढ़ते हैं, तो हमारी फीलिंग अपने आप above the line रहती है. एकदम, इसीलिए शेयरिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट. और यहाँ पे भी जब शेयर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना. वी गेट इंस्पायर्ड आल्सो कि लेट मी आल्सो, यू नो. 51% वाला काम तो जब क्लासेस चल रहा तब तो अपने आप ही 81 हो रहा है, उसके बाद की चिंता है. वो अभी 81 है मतलब. Seeing such nice videos, Dr. Shetty का video and all those, it puts us above the line automatically. I shared that video. हाँ बेला जी. Thank you for that. Amazing. Thank बट आजकल यू नो मुझे लगता है इतने फॉरवर्ड, इतने शेयरिंग से सब आ रहे हैं, सब फॉरवर्ड कर देते हैं, अरे बहुत अच्छा लगा. लेकिन उसमें से हम लोग कितना अपने लाइफ में, अगेन द सेम क्वेश्चन, हाउ मच वी अप्लाई इन आवर ओन लाइफ. पढ़ते हैं, बहुतों को फॉरवर्ड कर देते हैं, बहुत से फॉरवर्ड आ भी जाते हैं, शेयर भी करते हैं, अच्छा भी लगता है, मोमेंट्री, यू नो, फ्लीटिंग मोमेंट, बहुत अच्छा लगा. और 1 घंटे बाद ही वी यू नो स्टार्ट सेइंग द थिंग्स व्हिच वी डोंट वांट टू, और वी स्टार्ट थिंकिंग व्हिच वी डोंट वांट टू. तो कितना हम लोग उस पे कॉशियस होकर अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं. अगेन यू नो, सब कोई, मुझे कितने जन से सुनती हूँ गीता क्लास कर रहे हैं, अभी तो विंटर्स आ रहा है तो भागवत का तो लाइन लग जाएगा, एक के बाद एक सब भागवत सुन रहे हैं अगेन. बट वो सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितना हम लोग उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं. लेट अस चेक, कीप अ चेक ऑन दैट, यू नो, क्या मैं कितना अपने लाइफ में कहाँ कैसे अप्लाई कर सकती हूँ. लेट अस वर्क ऑन दैट. नेहा जी, But I will always remember that line. Hands that help are yes, holier than holier than, hands that pray. Yes. Yeah, very true. Beautiful lines. Yeah. something, all these things अगर हम लोग अपने आप को याद दिलाते रहें तो अच्छा रहेगा, यू नो. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, जिनसे जैसे इस सेशन में आने से वी ऑल आर यू नो थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, वाइब्रेशन सबका वैसा ही है. तो ऐसा अपने मैजिक बडीज इसीलिए हम लोग बनाते हैं, जिनसे आप ऐसा बात करें, यू नो, फ्रेंड्स जो एक ही में है, जैसे ननद भाभी वगैरह भी यहाँ पे थे ना, देवरानी जेठानी, लाइक, सो यू ऑल टॉक ऑन द सेम लेवल. तो ऐसे और किसी फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करिए, उनसे बातें करिए, यू नो, वैसा तभी हो सकता है लाइफ में. वो आप कुछ अगर नेगेटिव बोले तो अदर वन इज देयर टू करेक्ट यू एंड टेल यू कि नो, वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस, वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस. तभी होगा साथ में जाने से. अकेले जाने से ना जनरली होता नहीं है. बुक रीडिंग सेशन भी सोचते हैं अकेले कर लें, वो नहीं होता है जब तक कि हम लोग इस ग्रुप में नहीं आते. सो स्टे कनेक्टेड, यू नो, कहीं भी कोई भी सेशन हो रहा हो, डू जॉइन, स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड कीप अप्लाइंग इन योर लाइफ. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. वो एक तो बॉय का था ना, एक वीडियो था ना, whatever we practice, if we practice jealousy, we'll become jealous.
इफ वी प्रैक्टिस, अगर नेगेटिव चीज को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उसमें परफेक्ट हो जाएंगे. अगर हम लोग पॉजिटिव जिसको जितना अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग उसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे. सो व्हाट आर वी प्रैक्टिसिंग राइट नाउ? बोल रहा है? हाँ दी, मैं नेहा बोल रही हूँ दी. मेरे को एक चीज पूछना था दी, अगर आपके घर में माने कोई आपके नेगेटिवली वाइब्स आए किसी से, तो उस समय क्या करना चाहिए? मतलब हर टाइम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नॉट अबाउट मी, अबाउट एनीबॉडी एल्स, अदर कोई भी किसी के बारे में भी, तो उस समय आदमी उस समय एट द सिचुएशन ऐसा होता है कि आप उसमें जा नहीं सकते हो उस प्लेस तो पे. कहीं से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो द थिंग इज, एज आई थिंक मिकी हैज आल्सो शेयर्ड बिफोर, वी विल वर्क ओनली ऑन आवरसेल्फ. हम लोग किसी और को चेंज करने का नहीं सोचेंगे, हम खुद चेंज करेंगे. अगर किसी के बातों से अगर हम गुस्सा हो जा रहे हैं या हम लोग बिलो द लाइन जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ने अपने लाइफ की रिमोट उसके हाथ में दे दी है. वो जो चाह रहा है वैसा हम फील कर रहे हैं, आ रहा है. आप अपना ऑरा अपना इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि किसी की नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करे. जो हेलो बोलते हैं ना, अपने चारों तरफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके हम लोग इतना बड़ा कर लेंगे कि कोई का नेगेटिव वाइब्स, अगर हम बिलो द लाइन है, कोई नेगेटिव वाइब दिया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वो कोई नेगेटिव वाइब्स दिया, इट विल कैच वेरी फास्ट, राइट. और अगर हम पॉजिटिव हैं, या लाइक ऐसे बोलते हैं जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर हम आज अभी इस सिचुएशन में नेगेटिव में है, सामने वाला नेगेटिव अगर हम लोग को दे रहा है, तो वी विल कैच वेरी फास्ट एंड बिकम ऑल द मोर नेगेटिव, और हम लोग उसी में जाते जाते हैं. बट इफ वी आर पॉजिटिव, सामने वाला अगर उसको नेगेटिव दे रहा है, इट विल नॉट अफेक्ट यू. और दी, अगर आप कुछ बोल भी रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क normally and you are in a positive mood, you are doing your work the way you are doing, but she is continuously saying, so all the time the negative energy is coming, and all the time like, so she was, ये कहानी घर घर की है. Can I say something? मैं कुछ बोलूं नेहा? Yes, sure. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना. So sweet, Dee. So sweet. Just प्यार बढ़ाओ बस. पायल जी ने एक क्लास में बोला था ना, ये टेस्ट पेपर्स तो आएंगे ही. हाँ, तो these are test papers. डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, मतलब 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स आपको पास होना. आप अपना पूरा प्यार दे रहे हो, मतलब सामने से रिटर्न आप, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको प्यार मिले, बट ऑल द टाइम दीदी नेगेटिव फुल एनर्जी. तो दीदी, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, वेयर इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? सॉल्यूशन आपके पास ही है. और आप मैजिक बुक कर चुके हो कि पावर बुक फर्स्ट है? नहीं, मैं मैजिक बुक ट्वाइस कर चुकी हूँ. ट्वाइस? अफर्मेशन कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए. कितने उसमें एक्सरसाइजेस हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए, और अब तो पावर आ गया है, उनको प्यार दीजिए जैसे कि बोल रही है. सो एंड अब तो आप डील करना आना चाहिए अब तो सिचुएशन को. आपके हाथ में तो मैजिक वॉन्ड भी आ गया. हाँ, है ना? Anyway, Neha, these type of questions helps many. Yeah, that is true. मतलब एक लगता है ना, कभी कभी कुछ मने कभी हाइट टू द इंफिनिटी हो जाता है. नेहा, तुम बोल के उसको इंफिनिटी कर रही हो. बोल चुकी हो. You have told so many times. तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा. And you are saying in front of so many people, you are giving it so much power. Sorry, Didi. 1 complaint is equal to 10 gratitude. 10 gratitude. You have gone down. कम से कम 30 gratitude तो तुम्हारा होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. Sorry, Didi. Sorry, Didi नहीं. 30 gratitude लिखना होगा जिनके लिए तुम्हारे मन में है, अभी होगा. मतलब you have gone totally below the line in this area. Yes, I understand. आज का ट्यूशन क्लास का याद आ गया. One spelling mistake, she was writing 5 times. फिर मिस्टेक ही हमने राइट 10 times. 10 times. ये वही हो रहा है. राइट. Payal, it's 4:50. Superb explanation. Superb explanation. Yeah, it's 4:16. अच्छा, हम लोग बहुत बातें करते हैं. चलो. Okay, so today's chapter is all about the power and creation.
So Bela ji is reading today. I'll read. Should I start? Everyone, please mute yourself. Is it Should I fine? start? You're reading from your book. The screen is fine. Yeah, I am reading from my book. मुझे लग रहा है कि स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? Yes, दिख रहा है दी. Yeah. Now I request everyone else to please अपने आप को सबमिट कर लीजिए. Only बेला जी, ज्योति जी आप अनम्यूट हो. Yes. तो यहाँ the power and creation. पिक्चर में हम लोग को जो दिख रहा है, what can you see? What are these? Pyramids. Pyramids. Yes. कहाँ पे है? I think ये मिट्टी का ड्रीम है ना जाना? It just reminds me. Egypt. Yes, ये आज देखते ही मेरे को मेरा क्यू मिल गया. एकदम मेरे को भी देखते ही याद आ गया. यस, सो किसी ने देखिए पहले भी थे उन लोग में, हम लोग में इतना पावर है, किसी ने इसको क्रिएट किया है, राइट? सो द पावर इज विद इन अस टू क्रिएट वट एवर वी विश टू. इट जस्ट हैज टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, द लव विच वी गिव एंड वॉट द डिजायर हैज टू बी दैट स्ट्रॉन्ग कि हम लोग किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं. एंड व्हेन वी कैन सी कि कितने लाइट्स हैं यहाँ पे, सो समवन मस्ट हैव क्रिएटेड दिस, थॉट ऑफ इट, उसको बहुत प्यार दिया होगा. जिसने, जैसे राइट ब्रदर्स भी ऐसे थोड़े एरोप्लेन बन गया, राइट? इन्वेंट हो गया. उन लोग भी कितना उसके बारे में सोचे होंगे, विजुअलाइज किए होंगे, इमेजिन किए होंगे, देन वो क्रिएट हुआ है. अगर स्टार्टिंग में कोई बोला होगा कि हम लोग ऐसे हवा में उड़ के बैठ के जा सकते हैं, उस टाइम के लोग कितना हंसे होंगे ना कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई, और कोई थोड़े कुछ उड़ सकता है. बट इट बिकेम पॉसिबल. फिर शायद जब टेलीफोन इन्वेंट नहीं हुआ था, तो फिर उस समय जब वो हुआ होगा ग्राहम बेल ने, तो कोई सोचे होंगे उसने, जब उसने बोल रहा होगा मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, आई थिंक most of the people at that time must be laughing, how is this possible? But उनका इतना इच्छा था, इतना पावर था खुद में, इतना लव उन्होंने दिया, उसके बारे में इतना विजुअलाइज किया कि उन्होंने करके दिखाया. सो हमारे अंदर इतना पावर है कि हम कुछ जो चाहे वो हम पा सकते हैं, कर सकते हैं, बट हम लोग उसको अभी तक पहचाने ही नहीं है. वी हैव नॉट हार्नेस्ड इट. क्या हार्नेस का कहते हैं, दोहन ही नहीं करें, है ना? So let us read how we can achieve all our dreams and desires. We can get whatever we want with the power within us. How we can do that? Let's read. Should I start? Yes, Bilaji. Okay. Every moment of your life is infinitely creative and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request and everything your heart desire must come to you. Shakti Goin, B. 1948, author. तो every moment of our life is infinitely, मतलब हम लोग हर क्षण हर पल कुछ अपना क्रिएट कर सकते हैं और पा सकते हैं. और यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर मात्रा में है, मतलब बहुत बहुत ही इनफाइनाइटली बाउंटीफुल, मतलब बहुत सारा है, बट हम लोग को उसको खाली क्रिएट करना है और थॉट देना है. जस्ट पुट फॉर द क्लियर इनफ रिक्वेस्ट, क्लैरिटी के साथ, मतलब उस चीज़ को हम लोग को यूनिवर्स से मांगना है. ये नहीं मांगना है कि भगवान मुझे खुशी दे दे. अरे आपकी खुशी का पैरामीटर्स क्या है? हो सकता है आप अभी जैसे लाइफ जी रहे हो, बस एक तो घर मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, बस आई एम हैप्पी. किसी का है कि नहीं मुझे अगर टर्नओवर मुझे 1 करोड़ चाहिए ईयर का, किसी का है मुझे 5 करोड़ चाहिए तब मैं खुश होंगी, कोई है कि जब मैं यूरोप घूमने जाऊंगी तब मैं खुश होंगी, कोई सोचेगा कि मेरे पास मर्सिडीज, BMW या लंबोर्गिनी आ जाए तब मैं खुश हूँ. तो हैप्पी बोलने से तो नहीं होगा ना, यूनिवर्स को नहीं समझ में आएगा व्हाट मेक्स यू हैप्पी. आप कुछ सोच रहे होंगे हैप्पी मीन्स अ बंगलो, और वो आपको 2 बेडरूम फ्लैट दे देगा, विल यू बी हैप्पी? नहीं. सो इसीलिए हम लोग को अपना जो रिक्वेस्ट है ना बहुत ही क्लियर यूनिवर्स के सामने रखना चाहिए. वी शुड नॉट से आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी सक्सेसफुल. व्हाट आर योर पैरामीटर्स ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? सो हम लोग को जो हमारे हार्ट में डिजायर है will all come to us if we clearly state to the universe what we want. And वहाँ पे सब कुछ है, गाड़ी है, आप जो मांगो, बंगलो है, जो मांगो, everything is there in the universe in our life. Yeah. In these next chapters, you will learn how easy it is to harness the force of love for money, health,
career, business, and relationships. With the knowledge, you will be able to change your life into whatever you want. To bring a specific desire to you, follow the simple steps of the creation process. Whether it's bringing something you want or changing something you don't want, the process is always the same. The Yes. creation process. तो यहाँ पे देखिए हम लोग को आज सिंपल स्टेप्स बताएंगे जिससे हम लोग अपने ड्रीम्स डिजायर्स को पा सकते हैं. अच्छा, इट्स ब्रिंगिंग समथिंग यू वांट और चेंजिंग समथिंग यू डोंट वांट. ये दोनों तरह से अगर हम लोग बोलेंगे मुझे नी पेन नहीं चाहिए, तो हम लोग जितना वो बोलेंगे ना नहीं चाहिए, नहीं, तो वो यूनिवर्स समझता नहीं है, वो ही हम लोग को बहुत ज्यादा मिलेगा. सो वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू डोंट वॉन्ट, आप अगर जिस चीज को ज्यादा पावर देंगे, ज्यादा उनके स्पष्ट रूप से यूनिवर्स के सामने रखेंगे, हमें वही मिलेगा. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. भक्ति जी हैज रेज्ड हर हैंड. आपको कुछ पूछना है क्या कि बाय ऐसे ही हो गया? No, I just want to can I share here something or later on? Regarding right now what we are reading, or it's something the pain you say, no, like that the saying had been changed for me, and actually I am like being in yoga instructor. I was doing so many things for few months. There was few sensations in my heel, and it used to get worse and worse only always, though I was having the medicine, though I was doing the kriya, though I was keeping my leg up. But because I was repeating the same thing that यार वो pain नहीं है, अभी भी थोड़ा सा है, अभी भी थोड़ा सा है, so it was there only. But then after this magic book last what we did, and I started saying hope no therapy, and after that I used to say thank you that my heel is thank you for the happy and healthy heel. I just changed my saying and there is no pain. Very good. Great. So I believe that the saying matters a lot. Absolutely. Our words have power. We are creating our own life every moment through our thought and whatever we are saying. So words are very powerful. इसीलिए बोलते हैं ना, सोच के बोलो क्या बोल रहे हो. Yes. So where was that? The creation process. Yes. The creation process. Imagine it, feel it, receive it. Number 1, imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. Yeah. So first step क्या है creation में? Imagination और visualize करना. जो हम चाहते हैं as if हमें वो चीज मिल चुकी है, हमें ऐसे visualize करना है, imagine करना है. So use your mind to focus what you desire. जो हमें चाहिए हम लोग सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचेंगे. एंड यहाँ पे फिर से देखिए बी डू हैव है. इमेजिन योर सेल्फ बीइंग विथ योर डिजायर. एग्जाम्पल जैसे अगर आपको एक 4 bedroom फ्लैट चाहिए, राइट, विथ अ नाइस स्विमिंग पूल और समथिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा विजुअलाइज करेंगे एज इफ वी आर बीइंग, हम लोग बहुत खुश हैं उसमें, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहां पे हैं, वी आर बीइंग दैट, वी आर इमेजिनिंग दैट. एंड उसके बाद हम लोग उसमें कर रहे हैं, हम लोग वहां पे जैसे रह रहे हैं, पूरी फैमिली है साथ में उस फ्लैट में, उसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग वैसा करेंगे. और उसके बाद द थर्ड है एज इफ वी हैव गॉट दैट हाउस, और हम लोग सब बहुत मजे से आई एम बीन स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम इन दैट बंगलो और फ्लैट, व्हाटएवर आप जो सोचे हो. अगर गाड़ी है, आपको गाड़ी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग बहुत सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, आप बैठे हैं, घूमने गए हैं, एंड देन दिस इज हाउ बीइंग विद इट, यू आर डूइंग इट, एक्शन लेना, और उसके बाद वो रिसीव है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये होता है. उसके बाद नेक्स्ट इज फील. Feel. At the same time as you imagine, you must feel love for what you're imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power drawing your desire to you. This completes your part in the creation process.
हाँ, so the after imagine, visualize करने के बाद the next is feel. Feelings are like so important. हम लोग लास्ट के 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. Feeling is creation और feeling frequencies के बारे में है ना. So universe understand the language of feeling very well. अगर आप कौन सा फीलिंग्स दे रहे हो, आप जब इमेजिन कर रहे हो उसमें बहुत सारा प्यार डालेंगे, आप वो प्यार महसूस कर रहे हो, आप वो खुशी महसूस कर रहे हो. एंड यू मस्ट इमेजिन एंड फील बीइंग विथ योर डिजायर. अगर आपका वो डिजायर है तो आप उस गाड़ी के साथ हो, वैसा आपको कैसा लग रहा है उसमें बैठ के राइड में जाने के लिए अपने फैमिली के साथ, उसको आप फील कर रहे हो और उसको आप खुद चला रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आप उसका फिर वो भी उसको आप फील कर रहे हो. मतलब जब तक जैसे हाथ में गुलाब का फूल है लेकिन आप उसको सुगंध ले रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो एज इट इज देयर इन योर हैंड इवन इफ इट्स नॉट देयर. सो वैसा. और उसके बाद कि जैसे आपको वो मिल ही गया है, हमें ये उसमें फीलिंग्स डालने हैं, अबव द लाइन वाले फीलिंग्स डालने हैं जब हम लोग को विजुअलाइज करने हैं. अगर हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं और बिलो द लाइन की फीलिंग में है कि हम लोग विजुअलाइज तो गाड़ी कर रहे हैं BMW, लेकिन अगर फीलिंग ये है कि कैसे आएगा, पता ही नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चलो कर तो लेती हूँ, तब वो दैट्स अ बिलो द लाइन फीलिंग विद डाउट एंड कि होना चाहिए, डर होना चाहिए कि कैसे जाएगा, वरी है, तो वो आपका पूरा नहीं होगा, वो आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो फीलिंग्स आर अटमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप उसको अगर जिसमें आप प्यार डालोगे तो फीलिंग्स ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, अबव द लाइन का ही होगा. आई डोंट थिंक सो यू कैन गो बिलो द लाइन फीलिंग. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाड़ी में जब इमेजिन कर रहे हो तो यही इमेजिन कर रहे हो कि आप उसको चला रहे हो, मजे कर रहे हो, ड्राइव पे जा रहे हो, घूम रहे हो, यू नो. ये थोड़ी इमेजिन करोगे कि आएगा कि नहीं आएगा. सो बस ट्राई टू स्टे अबव द लाइन ओनली, देन ओनली वी कैन अट्रैक्ट इट. Receive. The force of love will walk through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want. As an athlete desires to play a sport, a dancer desires to dance, and a painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart because desire is feeling of love. And you must give love to receive what you love. Yes, so हम लोग को कैसे मिलेगा? अगर आप अपने डिजायर से इमेजिनेशन जब कर रहे हैं उसमें इतना फीलिंग्स दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक पावर है ना, आप उसको ऑटोमेटिकली अपने तरफ पुल करते हो, हम अपने डिजायर की तरफ, है ना. जब बहुत ज्यादा आपके शिद्दत हो, इच्छा हो. अब यहाँ रिसीव कैसे होगा? फोर्स ऑफ लव विल वर्क थ्रू द विजिबल एंड इनविजिबल फोर्सेस ऑफ नेचर. आपको पता ही नहीं. अगर आप बोलते हैं ना, वो शाहरुख खान का उसका डायलॉग है ना, शिद्दत से किसी चीज की पाने की अगर करोगे तो पूरी कायनात उससे आपको जुड़ाने से मिल जाती है, इसी टाइप का है ना डायलॉग. तो उससे क्या होगा? सर्कमस्टांस, यूनिवर्स अपने आप सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर देगा कि आप अपने सारे डिजायर्स आपको मिल जाएंगे, आपके लाइफ में वो अट्रैक्ट होगा ही होगा. तो डोंट गेट इनटू हाउ, जस्ट अलाउ, जो बोलते हैं आप यूनिवर्स को करने दो. हमारा काम क्या है? हमें उसे बहुत ही प्यार देना है और बहुत फीलिंग्स देना है. आपको पता ही नहीं चलेगा. कितनी बार बोलते हैं अरे मैंने तो सिर्फ सोचा था और मेरे को देखो ये मिल गया. क्यों? क्योंकि आप हमें उससे बहुत प्यार दे रहे थे. बोलते हैं ना बर्निंग डिजायर, डिजायर इज लव. जब तक आप में ये डिजायर नहीं हो कि मुझे ये चीज चाहिए, इसका मतलब आपका वो डिजायर है ही नहीं. अगर आपकी ये फीलिंग नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए, नहीं तो कितनी बार होता है ना, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक. नो, दैट्स नॉट अ बर्निंग डिजायर. इसका मतलब आपका क्या वाला फीलिंग है? ओके, आई एम ओके विथ रिसीविंग इट ऑल्सो एंड ओके विथ नॉट गेटिंग इट ऑल्सो. उससे आप क्या कर रहे हैं? आप अपने डिजायर से बहुत दूर जा रहे हैं. आप उसको उतना प्यार ही नहीं दे रहे हैं कि आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. तो हम लोग को क्या करना है? जनरली वी विल सी इन ऑल द प्लेयर्स एंड एथलीट्स. आप अभी जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ, कितने जन का मैंने इंटरव्यू सुना, ऑल ऑफ देम वर सो फोकस्ड. उनका एक ही सपना था कि बस मेडल लेकर आना है. एक ही सपना था, उनको सिर्फ वही दिख रहा था, अपना लक्ष्य ही दिख रहा था, मेडल लाना है, लाना है, लाना है. वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि नहीं मिला तो. इट वॉज नॉट देयर ओनली. सो उन लोग सिर्फ इमेजिन ही कर रहे थे. वो जो है ना हॉकी प्लेयर का भी जो कैप्टन ब्रजेश आई थिंक, उनका भी कोई मैंने इंटरव्यू सुना था कि बोला हम लोग तो यही इमेजिन कर रहे थे उस फील्ड में भी कि हम लोग को बस मेडल मिल रहा है. तो हाउ इट ऑल वर्क.
and after so many years I think first time हम लोग को मिला है. So it is really you know we must learn from all these sports people. तेंदुलकर अगर आप कभी उनका इंटरव्यू सुनेंगे ना, I have never seen Sachin Tendulkar ever talking anything negative about any person also and about his life also. He's always using all the positive words. अब से हम लोग क्या, अब हम लोग को पता चल गया है, इट्स ऑलवेज बेटर यू नो, आप सबके इंटरव्यू सुनो या पढ़ो, आपको समझ में आएगा हम लोग कैसे बातें करते हैं. ऑल दिस सक्सेसफुल पीपल, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हाउ दे आर टॉकिंग, यू नेवर सी हिम. आई ऑलवेज सी हिम. अब तो वो रिटायर हो गए हैं, तब उनके और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं, उनके छोटे छोटे चैट शोज आते हैं. सो यू कैन यू नो वॉच ऑल दोज, क्योंकि आई हैव नेवर सीन हिम टॉकिंग इल अबाउट एनीबॉडी. एंड हमेशा सबको बूस्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एंड ही इज जस्ट एंजॉयिंग हिज लाइफ. इसीलिए उन लोगों ने इतना पा लिया. उनका हर चीज का एक लक्ष्य रहता था, एंड ही जस्ट यूज्ड टू सी दैट. अ पेंटर डिजायर्स टू पेंट, अ डांसर डिजायर्स टू डांस. जिसका अगर बहुत डिजायर है, सुधा चंद्रन जी का, शी लॉस्ट अ लेग, देन ऑल्सो यू नो उनका डिजायर ही ये था कि मैं यहाँ पे डांस करूँ, स्टेज पे डांस करूँ. एंड शी कितने जन हाफ ऑफ अस विल तो गिव अप ओनली कि नाउ आई कांट डिजायर. शी लॉस्ट अ लेग, देन ऑल्सो वो अपने एम्पुटेटेड लेग से, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक लेग से, शी इज बीन डांसिंग फॉर इयर्स नाउ. तो उन्होंने अपने डिजायर, बर्निंग डिजायर किस चीज का था, डांस, मुझे करना ही करना है. एंड सो वॉज फॉर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी को ले लीजिए, कौन अनम्यूट हो गए, उनको ले लीजिए. तो और ये पेंटर जब वो पेंट करते हैं, वो इमेजिन करते हैं वो क्या पेंट कर रहे हैं, वो अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं और इसको पा लेते हैं. उसको जो क्रिएट करना चाहता है वो उनके कैनवस पे क्रिएट हो जाता है. लुक एट द पावर ऑफ इमेजिनेशन इन दैम. सो इट इज ऑल फीलिंग ऑफ लव, एंड वी मस्ट गिव लव टू रिसीव व्हाट वी लव. अगर हम लोग को वो चीज़ चाहिए और इतना शिद्दत है, इतना बर्निंग डिजायर है, तो हमें उससे बहुत बहुत प्यार ही दे सकते हैं. नफरत तो खैर दे ही नहीं सकते हैं, है ना. और अगर उतना प्यार नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो हम लोग का डिजायर है ही नहीं. Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love, imagine it, feel it, receive it. When you कितना इजीली इसमें लिख दिया ना, अपने डिजायर पूरे करने के लिए. अरे करना ही क्या है, खाली प्यार ही तो देना है. उसको इमेजिन करो, उसको फील करो और अपनी इच्छाओं को पालो. हाँ, easy said than done, but it is that easy. But the thing is हम लोग उतना देते ही नहीं है प्यार. The problem is with us only, है ना. हम लोग उतनी शिद्दत से ना चाहते हैं ना फीलिंग्स देते हैं, क्योंकि हमेशा वो बिलो द लाइन वाली फीलिंग पहले आती है, ह्यूमन टेंडेंसी, राइट. बट वी आर अ फीलिंग बीइंग, तो हम लोग को बहुत बहुत सारे फीलिंग्स देने हैं, लव देने हैं, एंड वी कैन हैव व्हाटएवर वी वांट. कल परसों ही मैंने एक तो पढ़ा था कि 95% ऑफ द पीपल, जिनको कौन सक्सेसफुल होते हैं, ओनली 5% पीपल इन द वर्ल्ड आर सक्सेसफुल ना. 95% आर नॉट, बिकॉज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पीपल गिव अप इन 1 month, यू नो. उसके बाद फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल गिव अप इन 6 months. यू नो, हम लोग का डिजायर, हम लोग को परसिस्टेंसी नहीं है, वो कंटिन्यू होता ही नहीं. हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. एंड देन लेकिन जो 5% है वो अपने फीलिंग्स लव देते ही रहते हैं, कंटिन्यू करते ही रहते हैं, एंड देन दे बिकम सक्सेसफुल, एंड दैट्स व्हाई दे अचीव ऑल देयर ड्रीम्स एंड डिजायर्स. बट वी गिव अप वेरी फास्ट. हम लोग 1 महीने में मैजिक का बुक का प्रैक्टिस करेंगे. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ मंथ, नथिंग इज हैपनिंग इन माय लाइफ, सो वी गिव अप. बट हम लोग को गिव अप नहीं करना है, एंड इट इज सो सिंपल. वी जस्ट हैव टू कीप गिविंग लव विद लॉट ऑफ फीलिंग्स. When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already, and never deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give, and so you must imagine and feel having it now. हाँ, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है. हम लोग को कुछ नहीं करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट यू गिव वी गेट. अगर हम लोग प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा. सो कॉपीज व्हाटएवर यू गिव, सो यू मस्ट इमेजिन एंड फील एज इफ यू हैव इट नाउ. तो हम लोग को क्या इमेजिन करना है कि हमारे पास यहाँ है. अगर हम उसको अभी इमेजिन करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास क्या होगा, जो हम चाहते हैं वही चीज अट्रैक्ट करेंगे, वो एग्जैक्ट कॉपी होके हमें वापस यूनिवर्स दे देगा. ओ ये इमेजिन कर रही है, ये फील कर रही है, ये इसका चाहत है, उसको हम लोग को मिल जाएगा. इट इज दैट सिंपल. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग खीर बनाते बनाते वही बात है, दही डाल देते हैं, बिलो द लाइन की फीलिंग्स डाल देते हैं, और वो
खराब हो जाती है और हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो हम लोग का खीर पकते पकते खराब हो जाता है बिकॉज वी गिव अप इन द प्रोसेस। वो हम लोग को करना नहीं है। नेवर डेविएट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग। इफ यू आर बीइंग हैप्पी राइट नाउ, जॉयफुल राइट नाउ, लेट अस नॉट डेविएट। यस। If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love, instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship. यस। सो देखिए, अगर हम लोग को अपना वेट रिड्यूस करना है, ये तो बहुतों का ड्रीम में होगा, आई एम श्योर ड्रीम लिस्ट में। देन गिव लव बाय इमेजिनिंग एंड फीलिंग विद द बॉडी यू लव। मतलब अगर आप चाहते हो आपका आइडियल वेट 55-60 हो, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग उतना सोचते नहीं है, हम लोग ये सोचने लगते हैं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, हो ही नहीं रहा है। बट हम लोग को अपने आप को उसमें इमेजिन करना है, और आपको ये इमेजिन करना है कि आपके जो ड्रेसेस हैं जो आप चाहते हैं पहनना, वो आप सब पहन रखे हैं, और उसको बहुत सारा प्यार देने। वाओ, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग सो फिट एंड स्मार्ट, यू नो। इमेजिन बीइंग इन दैट सिचुएशन, और उसको इतना प्यार दीजिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्लोली ओवर द टाइम हम लोग उस वेट के हो गए हैं। क्या बोलते हैं ना, वही जिम जा रहे हैं लेकिन कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। So we have to take some action and feeling that you are overweight every single day। और हम लोग क्या करते हैं, हर किसी से यही बात करते हैं कि पता है मैं तो मोटी हो रही हूँ, अभी 10 दिन में इतनी मोटी हो गई हूँ, मेरे को पहले वाला ड्रेस ही नहीं आ रहा है, मुझे अब ये पहनने का इतना मन है लेकिन पहन ही नहीं पा रही हूँ। जनरली वी टॉक मोर ऑफ दीज थिंग्स। सो क्या होगा, हम लोग किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको एनर्जी और पावर दे रहे हैं? टू पुट ऑन द वेट ओनली। सो वो कभी रिड्यूस नहीं होगा। जो हम लोग चाहते हैं, हम लोग अब उसी के बारे में बात करेंगे। इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग एंड फीलिंग दैट यू आर ओवरवेट एवरी सिंगल डे, नाउ वी विल इमेजिन व्हाट वी वांट आवर आइडियल वेट टू बी। अगर हम लोग को कहीं घूमने जाना है, तो हम लोग को वो जगह स्विट्जरलैंड जाना है, तो हम लोग अब बैठेंगे आराम से स्विट्जरलैंड के वादियों में जैसे हैं, हम लोग इमेजिन करेंगे वहाँ जुंगफ्रो जो माउंटेन है, हम लोग वहाँ हैं, अरे मेरा फेवरेट ट्रेंच कोट मैं पहन रखी हूँ, और वो स्नो कैप माउंटेन के ऊपर हूँ, और मेरे फैमिली मेरे साथ है, और हम लोग एक दूसरे को स्नो बॉल से बना बना के फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। तो आप सोचो, आप क्या उस समय बिलो द लाइन की फीलिंग में हो सकते हो? नॉट पॉसिबल इफ यू आर इमेजिनिंग दिस। तो उस समय हम लोग उसको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि हम लोग को, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका स्विट्जरलैंड का प्रोग्राम बन गया। और अगर आप ये सोचोगे, हाँ सोच तो लेती हूँ पर मुझे लगता नहीं मैं कभी जा पाऊंगी, क्या किया, खीर में बनाते हुए वापस से दही डाल दिया ये सोच के। नो नो नो, तब तो हम लोग क्या अट्रैक्ट किए, हम लोग कभी जा ही नहीं पाएंगे। So we have to imagine as if we are being that in that situation, and that's how we will attract it in our life. And so it with अगर आपको ट्रैकिंग पे जाना है, आपको सिंगर बनना है, तो imagine you are taking a mic and singing, you know, हर चीज को imagine करना है, और उसको बहुत बहुत प्यार देना है, और बहुत फीलिंग्स के साथ देना है, above the line की फीलिंग्स के साथ। स्विट्जरलैंड में है तो वो विद जॉयफुल एक्साइटमेंट, यू नो, सो दैट वी अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। वही अगर रिलेशनशिप में है, अगर किसी हम लोग अच्छे कपल को देख रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग, वाओ लुक एट दिस लवी डवी कपल्स, दे आर सो कंपैटिबल, काश मेरा और इनका भी इतना कंपैटिबिलिटी होता। नो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इल अबाउट इट, हम लोग बिलो द लाइन में जा रहे हैं। तब हम लोग की क्या हो रही है, हम लोग का रिलेशनशिप जो खराब था या ठीक ठाक था, वो और डिटोरिएट ही होगा या उस लेवल पे ही होगा। बट वही अगर हम लोग किसी लवी डवी कपल को देख के बोलते हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल, सो नाइस ना, they are so caring for each other, how nice, तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे रिलेशनशिप में भी वो केयर कहाँ से आ गया, वो कंपैटिबिलिटी कहाँ से आने लग गई है। So this is how the law of attraction works. What we give, we attract that in our life. वही हमारे पास आएगा। बच्चे चाहिए तो हर बच्चे को देख के उसके बहुत बहुत प्यार दो। बच्चे तो ऐसे भी बहुत जल्दी, आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं, है ना। कोई बच्चा को अगर आप प्यार दोगे ना, तो वो आपके पास जरूर आएगा, और नहीं तो उन लोग को वाइब्स बहुत जल्दी कैच करते हैं, उन लोग आपसे और दूर दूर भागते जाएंगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। हम लोग जिसको प्यार देंगे
तो वो हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा. सो अगर रिलेशनशिप आपको अपने बच्चे के साथ अच्छा करना है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड कंप्लेनिंग, सबको हम लोग क्या करते हैं फोन करके, मेरा बच्चा मेरा बात ही नहीं सुनता है, वो मुझे उल्टा जवाब देती है, वो देरी से सोती है. क्या बात करते हैं हम लोग? सिर्फ यही बातें करते हैं. देरी से उठती है, दिन भर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड आई थिंक OTT, सभी का जनरल कंप्लेन यही होता है. तो व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग उनको इतना पावर दे रहे हैं, हम लोग बिलो द लाइन को इतना पावर दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि हमारी लाइफ में वो अट्रैक्ट होगा, है ना. दोनों चीज अट्रैक्ट होगी. जिसको प्यार देंगे वही बढ़ेगा, वही अट्रैक्ट होगा. हम लोग कंप्लेन करके इतना उसको अपने लाइफ में हावी होने दे दिए, इतना अट्रैक्ट कर दिए. और वही आप अगर कंप्लेन नहीं करेंगे, हाँ जो भी कर रही है बच्ची अच्छा कर रही है, अच्छा करेगी, अच्छा कर रही है, यू नो, अगर हम लोग अच्छी बातें करेंगे तो आप देखेंगे आपको अपने बच्चे में चेंजेस दिखने लग जाएगा. दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. तो अगर अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, देन दैट वे वी हैव टू वर्क. Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. Saint Augustine of Hippo, 354 to 430, the Elogian and Bishop. Yeah. When you so, faith मतलब आस्था, belief. So faith is to believe that which you do not see. हम लोग को भगवान पे विश्वास है ना, क्या हम लोग को भगवान दिखाई देते हैं या नहीं देते, पर हम लोग फिर भी विश्वास करते हैं ना. which we do not see, and reward of this faith is to see that which you believe. हम लोग को भगवान पे इतना विश्वास है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर इतना विश्वास है वो जो दिखाई नहीं दे रहा कि हमें ये विश्वास है कि मैं उनको अगर कुछ बोलूंगी तो वो मुझे मिल जाएगा. तो एंड द रिवॉर्ड ऑफ दिस फेथ, आपका रिवॉर्ड क्या है? जो भगवान पे आप विश्वास कर रहे हो कि आप जो चाह रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो, वो हमें मिल जाएगा, जिसका आपको बिलीव है ना. तो यूनिवर्स में यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है. यूनिवर्स पे अगर हम लोग का बिलीफ है, अगर आपका बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काटेगी और रोड एक्सीडेंट होगा, आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो वो आपके साथ होगा, क्योंकि आपका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओवर द इयर्स हम लोग कितनी बातें सुनते आए हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है ना हम लोग, और उसको हम लोग इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो हमारे साथ होने लगता है. जो बिलीव नहीं करते हैं, आप देखिए उनके साथ नहीं होगा. सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर बिलीफ. अब हम लोग को अपने ड्रीम डिजायर पे बिलीव करना है कि ये मुझे मिल ही गया है, मुझे मिल ही जाएगा. और मिल ही जाएगा क्यों? मिल गया, मेरे पास है ये चीज, तो वो हमारे पास आ ही जाएगा. अभी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि वो हम उसे पा लेंगे. Such a strong words. Yes. When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. One young woman, हम लोग को जैसे अगर डाउट आ रहा है कि कैसे है, तो दिस इज वन टास्क और असाइनमेंट बोल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि आप हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? क्रिएशन प्रोसेस में कुछ छोटी छोटी 5 अनयूजुअल चीज को, आज का असाइनमेंट होगा, हम लोग इमेजिन करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है ही नहीं. अगर आप बोलोगे अभी काला गुलाब, अरे काला गुलाब है ही नहीं यहाँ, तो कैसे होगा, है ना. या होता है क्या? ब्लैक रोजेस भी होते हैं शायद. जो चीज ग्रीन रोज नहीं होता है, तो अगर आप बोलेंगे ग्रीन नहीं होता है और आप उसको इमेजिन कर लिए, तो वी विल नॉट गेट इट. तो 5 चीज ऐसे जिसको आप थोड़े से रेगुलर में नहीं देखने को मिलता है. मे बी अ बटरफ्लाई, अ रेनबो, अ पैरट, यू नो. अगर हम लोग ऐसा जैसे अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड, हम लोग उसको इमेजिन करेंगे, उसको लिख लीजिए 5 चीज, और उसको बहुत ही इमेजिन करेंगे, उस समय प्यार देंगे एज इफ यू हैव रिसीव. तो आपको देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज दिख गई है. ये नहीं कि आज लिखा और कल ही दिख गया, बट इन अ वीक साइन. इट डिपेंड्स आप उसको कितना पावर दे रहे हो, आप उसको कितना फीलिंग के साथ लव दे रहे हो कि आप अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर रहे हो. हम लोग ने ये वाला असाइनमेंट शायद पहले भी किया है, मैंने भी पहले किया है. तो एक बार मैंने मंकी किया था. अब मंकीज तो आजकल दिखते ही नहीं है ऐसे, लेकिन मैं अपनी डॉटर को लेके फोरम गई थी, वहां पे मदारी वो 2 मंकीज को लेके रखा था. जनरली वो विक्टोरिया टाइम में दिखता था, अब तो दिखते नहीं है. बट दैट डे, और मैंने सोचा अरे मैंने तो उसमें मंकी लिखा था, एंड सी आई जस्ट सॉ. तो इट इज समथिंग यू नो अनयूजुअली आपके सामने वो प्रकट हो जाएगा. तो दिस इज टू स्ट्रेंथन योर बिलीफ. यू नो हम लोग कितना उसको पावर दे रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं. हो सकता है आपको मोबाइल पे दिख जाए, हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो, किसी बुक में दिख जाए, टीवी में दिख जाए, बाहर जा रहे हैं तो कोई बिलबोर्ड पे दिख जाए. यू नेवर नो. So let's try this. Write 5 unusual things and let's see whether we can attract in our life or not. Let's see our power of imagination. Yes.
One young woman began by choosing to attract a specific flower, a white kala lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that kala lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there in the centerpiece of the table was a bouquet of white kala lilies, the very flower and color she had imagined. She was excited to see the lilies, but she didn't say anything to her friend about her imagined flower. As she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white color lily from the vase and put it in her hand. हाँ, देखिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ शॉर्ट स्टोरी में बताया है ना हाउ दैट यंग वुमन वो उनको वाइट कलर लिली चाहिए था और कैसे उसने इमेजिन किया और कैसे उससे वो मिल गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. 2 weeks later she went to a friend's house for dinner. तो मतलब उसने कब उसको चूज किया था, होल्ड किया था, इमेजिन किया था और 2 हफ्ते के बाद वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे गई थी एंड उन्हें लगा फील हुआ दैट द कलर लिली शी फेल्ट हैविंग दैट कलर लिली. And 2 weeks later she went to a friend's house for dinner और वहां पे टेबल के सेंटर पीस में वो लिलीज रखे थे एंड जो कलर उन्होंने इमेजिन किया था द सेम थिंग, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया था, उतना लव दिया था जब वो इमेजिन की थी कि शी अट्रैक्टेड दैट लिली इन हर लाइफ. एंड कैसे वो इतनी एक्साइटेड हो गई उसको देख के, एक्साइटेड अबव द लाइन फीलिंग. जस्ट सी. एंड शी डिडंट से एनीथिंग. अपने फ्रेंड को उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि अरे मैं तो इसके बारे में सोची थी और ये, बस वो उतना ही एक्साइटेड हो गई थी उसको देख के, अबव द लाइन की फीलिंग में थी. एंड व्हेन शी वाज वॉकिंग आउट ऑफ द डोर उस इवनिंग जब वो जा रही थी तो उनकी फ्रेंड की डॉटर ने उसको प्लग करके उनके हाथ में दे दिया था. सो शी हैड इट, शी इमेजिन्ड इट, यू नो, and she felt love for it, excited, and she received it in the end. So imagine, feel, receive, तीनों चीज इसमें हो गया. You know, that's how we attract. तो उसको हम लोग बिलो द लाइन में देना कि हाँ काश मुझे मिल जाए, हाँ इनके पास है मेरे पास नहीं है. These are all below the line feeling. पर वो excited थी and she was happy about it कि उनको देखने को मिल गया उनका favorite. That also she was very happy. And then she in the end she received it. उनको मिल ही गया, अपने लाइफ में उन्होंने पा लिया. Imagination is the beginning of a creation. You imagine what you desire, you will what you imagine, and at last you create what you will. George Bernard Shaw, 1856 to 1915, Nobel Prize winning playwright. हाँ, तो हम लोग का क्रिएशन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? इमेजिन. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विजुअलाइज करना. बोलते हैं जनरली 5 सेंस ऑर्गन्स जो हम लोग के हैं उन सबको विजुअलाइजेशन में हमें यूज करना है. दैट बिकम्स मोर पावरफुल. सो इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग अपने ड्रीम डिजायर का क्रिएशन के लिए. यू इमेजिन व्हाट यू डिजायर. घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, करियर चाहिए, फ्लरिशिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, यू नो. तो अगर आपको लाइफ में फ्लरिश करना है, ड्रीम जॉब चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ में बल्ले बल्ले चाहिए. So all that you have to desire first. Imagine what you desire. Imagine. And then you will what you will imagine. आपकी वो चाह होनी चाहिए strong. और जो आप imagine करेंगे उसमें आपको बहुत feelings देना है. And at last you create what you will. Will मतलब चाह, है ना? What you want actually. And at last you create what you will. जो आपने चाहा था, imagine किए था, चाहिए था, वो हमें क्रिएट कर दिए और वो हम पालेंगे. यस. Give it, receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror, because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo, because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang, because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine, because whatever you give is reproduce exactly what
exactly and you will receive back an exact copy. हाँ, तो देखिए इन्होंने कितने एग्जाम्पल के साथ बताया है व्हाट वी सी, व्हाट वी इमेजिन, जो हमें मिरर में हम क्या देखते हैं, जो हम दिखाते हैं वही तो दिखते हैं ना। अगर हम पेपर सामने रख देते हैं, कोई पिक्चर, तो मिरर में क्या आता है, वही आता है। तो हम जैसा चाहेंगे वही हमें मिरर से दिखेगा। एको में क्या होगा, जो हम बोलेंगे वही वापस आएगा। बूमरैंग सबको पता है, वो हॉर्स शू की तरह वैसे होता है बूमरैंग। हम लोग उसको अगर फेंकते हैं वो घूम के वापस हम लोग के पास ही आता है। तो व्हाट वी गिव थ्रो वही हमारे पास वापस आएगा। एंड कॉपी जीरोक्स मशीन में जो हम डालेंगे वही निकल, एप्पल का अगर जीरोक्स करना है तो एप्पल ही निकल के आएगा ना। तो हम जो भी चाह रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिसका डालेंगे वही बाहर आएगा। तो हम लोग को ये बहुत इजी होता है कि हम लोग अपने थॉट प्रोसेस में जब इमेजिन कर रहे हैं, जैसा इमेजिन करेंगे, जैसा फीलिंग्स के साथ इमेजिन करेंगे वही हम पाएंगे। अगर हम चाह रहे हैं BMW और हम लोग की इमेजिनेशन में अटकी हुई है आई थिंक नैनो या i10 या i20, तो हम लोग को वही मिलेगा जिसको हम लोग बहुत स्ट्रांगली इमेजिन कर रहे हैं, वही वापस आएगा। So the law of attraction is like mirror because mirror reflects back exactly what is in front of it. जो हम इसे दिखाएंगे आईने में हमें वही दिखेगा। तो वैसे ही लाइफ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक ऑल्सो अ बूमरैंग, जो हम फेंकेंगे वही वैसे आएगा, और जिस स्पीड में फेंकेंगे वैसे उस स्पीड में भी वापस आएगा। तो वी गेट एग्जैक्टली द वे वी सी। आपको जैसे वो फ्रीडा पिंटो थी ना, स्लम डॉग बिलियनर की, वो मिरर के सामने एज इफ शी इज रिसीविंग एन ऑस्कर, उसका वो स्पीच प्रैक्टिस करती थी। उस समय शी वॉज अ नोबडी, बट उसकी सिस्टर ने बताया शी यूज्ड टू प्रैक्टिस हर स्पीच स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एवरी डे। उन्होंने एक बार ओवरहियर कर लिया था, मतलब सुन लिया था। तो और उस समय तक सब हंसी रहे थे, सोच रहे थे कि कहाँ से क्या कर रही है, बट शी वाज लाइक नो 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 आई लाइक डूइंग दैट, एज इफ शी हैज रिसीव्ड एन ऑस्कर। एंड सच में उन्हें लाइफ में कितना लेटर ऑन इयर्स में शी रिसीव्ड एन ऑस्कर। इसीलिए बोलते हैं कभी ये नहीं बोलना चाहिए मेरे लिए, मेरे बिलीफ के बाहर की चीज है, मेरे लिमिट के बाहर की चीज है। यू कैन, we all can receive and achieve whatever we want to. It is just how powerful we make it. So so what we imagine, we see and we receive it. A few years ago, I was in Paris for my work and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, intricately detailed in a Persian style. My creation was love. What a beautiful skirt. A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U-turn at an intersection. As I looked at a store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the streets of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from Europe in the style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store, no purchased the skirt. It was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their order accidentally. The only thing I had done to bring that skirt to me was to love it. And from Paris to a suburban street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. That is the magnetic power of love. That is the love law of attraction is operation. Wow. कितना अच्छा है ना, कितने अच्छे। देखिए वो कहाँ थी, पेरिस में, और ये कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। वो वहां पे स्कर्ट देखी थी और वो व्हाट डिड शी से, उस समय ये नहीं था काश मेरे पास होता या इसके पास क्यों है, अरे यहाँ पे इतना, वो हर स्टेटमेंट वाज व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। वो उन्होंने इतने प्यार से, इतने एक्साइटमेंट से शी जस्ट गिव लव टू दैट स्कर्ट। एंड वो कब, फ्यू वीक्स लेटर जब वो ऑस्ट्रेलिया में थी, अब सर्कमस्टांसेस देखिए यूनिवर्स ने कैसे चेंज किया। वो कौन सा वो यू टर्न कोई रॉन्ग लिया तो वो गाड़ी रुकी तो उन्हें वो दिख गया, एंड उसके बाद शी गॉट डाउन, और वो भी रिड्यूस प्राइस में। और वो स्टोर वाला बोल रहे
कि हम लोग ने तो इसको ऑर्डर ही नहीं किया था, वो एक्सीडेंटली आ गया. सो हाउ वो कायनात कैसे सब कुछ कर देगा, दिस इज अनइमेजिनेबल, है ना. अनइमेजिनेबल. अभी पढ़ रहे हैं तो लग रहा हाउ इज दिस पॉसिबल, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड हम लोग उसको कितना प्यार देते हैं. एंड हियर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग, दैट इज लव्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम लोग इतना प्यार फीलिंग उसको दिए हैं तो हम लोग उसके लाइफ में अट्रैक्ट करते ही करते हैं. कितनी बार हम लोग बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं कोइंसिडेंटली, कितनी चीज के लिए बोलते हैं ना, पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली हो गया. इट इज नॉट दैट कोइंसिडेंटली, वो हम लोग को अभी तक पता ही नहीं था. हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को इतना प्यार दे रहे थे, इतना मतलब फीलिंग्स दे रहे थे कि हम लोग उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. पर हम लोग ने उसको नाम दे दिया कोइंसिडेंटली इट हैपेंड. But it did not happen coincidentally. It is our thoughts and imagine and love and feelings which made it happen. So we have that power, कि हम लोग कुछ भी करेंगे. तो it's just 5 to 5. I think हम लोग अभी इसको imagination will start tomorrow. So अभी आज हम लोग ने क्या चीज पढ़ा? Give it and receive it, and the 3 steps: imagine, feel and receive. So it is all on the individual. हम लोग यूनिवर्स कैसे सब कुछ circumstances को rearrange कर देता है to make it happen. Now we can stop saying coincidentally, और हम लोग उसको इतना प्यार देंगे जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की लाइफ में कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा. Yeah, so that's how I attracted my AirPods also. I had no clue. I just wanted to love, wow, what AirPod my daughter had, and I gave so much love to her कि उसके AirPod को कि my daughter was like, Mama, you buy one for yourself. I said नहीं, बाद में देख ही लेंगे, कर लेंगे कभी. And I was gifted an AirPod, by someone जिसको मैंने imagine नहीं किया था. So that's how we attract in our life. If we don't go below the line, अगर मैं ये बोलती कि काश मेरे पास भी होता, मुझे भी मिल जाता, मुझे भी कोई गिफ्ट करता, वो सब कुछ भी फीलिंग ही नहीं था. I just loved it and I liked it and attracted in my life. So this is how happened with all our dreams and desires. हम लोग जो चाहें वो हम पा सकते हैं, बट हमें उसे बहुत ही प्यार देना है. And it is that easy. इतना सिंपल लग रहा है और उतना ही सिंपल है, पर हमारा विश्वास नहीं है ना. हम लोग खुद ही अपने ड्रीम पे हम लोग का विश्वास नहीं है, पूरा होगा कि नहीं होगा. अरे अभी लगेगा लिख तो देती हूँ बंगलो, पता नहीं बंगलो होगा कि नहीं होगा. लगता है कि अरे नहीं, एक फ्लैट ही हो जाए तो बहुत है. हम लोग खुद ही नहीं बिलीव करते हैं तो कैसे पाएंगे. So first we have to believe in our own dreams, and then we have to give lot of love and feelings, and we will definitely attract that in our life. वो सिर्फ 5% लोग के लाइफ में क्यों होना चाहिए, वो जो चाहते हैं मिल जाता है, क्यों हम लोग को भी मिल सकता है. We all can have it, but हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और उतना प्यार और फीलिंग्स देते ही नहीं है जो हम लोग के ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं. Yes, please put on your videos. I have a question. Yes, Ritu ji. Those 5 desires that we are writing, we have to give love and feeling to it every day or just those one? are not desires as such. वो 5 unusual like things होने चाहिए. हाँ, 5 चीज ऐसे, वो ड्रीम डिजायर के लिस्ट में से नहीं होना चाहिए. So we have to think about it every day or just once? नहीं, वंस से तो नहीं होगा. अगर आप जैसे बैठे हो हर वक्त आप वो 5 चीज लिखा है, मैं बटरफ्लाई जैसे इमेजिन ही कर रही हूँ, वो वाह कितना सुंदर बटरफ्लाई. एवरी टाइम मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप उसको बहुत सारा प्यार दे रहे हो, फीलिंग्स दे रहे हो कि आप चाह रहे हो कि आपको वो दिख ही जाए. आप चाहते हो, मैं चाहती हूँ मेरे को ऐसा बटरफ्लाई दिखे, है ना. तो आपको कहीं ना कहीं से आपको वो बटरफ्लाई दिख ही जाएगा ना. उनको देखिए 2 weeks लेटर, है ना, उन्होंने उसमें का एग्जांपल में तो ये नहीं है कि आज आप लिखे, आज आप एक बार इमेजिन किया, बस आपको कल दिख जाना चाहिए. वो इट आल्सो डिपेंड्स, हाँ, आप कितना मतलब उसको प्यार दे रहे हो, कितने डिजायर आपका कितना स्ट्रांग है, उस पे है, डिपेंड करता है. तो लेट्स ट्राई दिस. बहुत मजा आता है इस गेम में. किसी ने बड़े वाले फोरम हम लोग का जो है, हम लोग आश्मीन मैम के फोरम में समवन है सेड पैरेट उन्होंने शायद लिखा था, है ना, मतलब ऐसा कुछ याद आ रहा है, बोलने वाला पैरेट या राम राम वाला, और उनको सच में दिख गया था. नीचे कोई जा रहा था, पास ऑन कर रहा था एंड राम राम बोलता हुआ. सोचिए उन्होंने ये लिखा था, सोचा था. सो दैट इज लाइक ऑल ऑन अस. जैसे मैंने शेयर किया, मुझे मंकी भी दिखा. एक बार मैंने रेनबो लिखा था, तो मुझे मतलब मेरी डॉटर टीवी पे कुछ देख रही थी, उसमें मुझे रेनबो दिख गया. कोई मैगजीन देख रहे हैं, आपको कहीं से भी कहीं भी दिख जाएगा, कोई पैकेट पे, कोई मैगजीन कवर पे, मोबाइल पे, कोई सीरियल देख रहे हैं और सच में भी ऐसे भी दिख जाएगा. So it's a very nice thing. Let's try. हाँ. लास्ट टाइम है ना, मैंने डियर लिखा था उन 5 चीजों में से एक.
और we had gone to a restaurant और उसके बाहर वो डियर का वो लगा हुआ था वो. It was I think winter time. हाँ हाँ winter time में वो रेनडियर का वो बना हुआ था. वो हाँ वो कोई रेस्टोरेंट में. हाँ अरे वाह. तो देखिए कहाँ से दिख जाएगा पता ही नहीं चलेगा. It happened with Rajan sir's class. He also said this was his first task. वो 5 thing. He said write it and then forget it. Don't get attached to it. Attach नहीं होना है. बस जब आप लिख रहे हो तो love देके बस छोड़ दो उसको. That time I had written camel and I saw a camel in an online shopping में dress का print था camel. देखिए कहाँ से दिखेगा वो भी नहीं पता. तो इसका मतलब इससे क्या होता है ना, हम लोग का बिलीव स्ट्रांग हो जाता है कि हम लोग देखिए जो चाह रहे हैं, ये जब छोटी छोटी चीजें हम लोग मिल सकती है तो हम लोग जो इतना बड़ा जब कुछ सोचते हैं तो हम लोग उसमें पहले गिव अप कर देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, पर सब कुछ हो सकता है ना. तो लेट्स प्ले दिस गेम. सबको आज अपना लेके लिखिएगा. ओके 5 थिंग्स. It doesn't have to be thing also. It can be a coffee with a friend. हो सकता है आपका कॉल आ जाए किसी फ्रेंड से. आपको दीदी मैंने भी लिखा था जब राजन सर का वो वीडियो देखी थी तब मैं भी लिखी थी. So I have written कि मेरी सबसे closest friend she will call me. So she really called me and she is my nursery friend ma'am. वाह. अब 7-8 years से मेरा contact उससे नहीं हो रहा था. She was in Europe. तो उसे contact नहीं हो पा रहा था मेरा. तो I was written कि मेरा उससे बात हो. मतलब again we get in touch. Wow. So after 2-3 days I got 7-8 years से बात नहीं हुआ था. Yes जी. और फिर after 2-3 days I got a call from her. I was like shocked. मतलब एक होता है ना unexpected कोई चीज हो आपके सामने. I was shocked कि इसका फोन आया. ये ऐसा ही होता है. फीलिंग फ्रीक्वेंसी वाज मस्ट हैव बीन वेरी हाई. जब ये सोच लेते हैं ना काश उस फ्रेंड का फोन आ जाए, वो अंदर से एक वाइब्रेशन, आई थिंक उस चैप्टर में किए होंगे सुरसुरी जो वाइब्रेशन होता है ना हम लोग का गूज बम्स टाइप से, तो वैसा होने से वो ना पक्का होता ही होता है. तो वो फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और कभी कभी क्या होता है वो फीलिंग्स नहीं आता, इमेजिन कर लिए लेकिन फीलिंग नहीं आया, तो वो चीज नहीं होती है. Sorry? Gratitude prayer. Yes, please. So everyone, please close your eyes. Thank you, universe. Thank you for the amazing life. Thank you for the good health of all my friends.